Hello students, welcome back to my channel. Today I am going to discuss transport of food and minerals in plant, that is the first chapter of class 8. This is for class 8. Okay, let us start with the chapter. As you know already, unicellular organisms like Chlamydomonas or simple multicellular organisms like Spirogyra, they transport materials occurs simple process by the fusion. The simple process by the process of diffusion, they transport the materials in your body in the unicellular organ. But in case of higher plants, the transport of water containing minerals and food, it occurs through a proper transport system that consists of the vascular tissues, also known as conducting strands or conductive tissue, that is made up of xylem and phloem. That is the important tissue, xylem and phloem, right? In plant, exchange of gases from the atmosphere, it occurs through the diffusion and movement of water, minerals, salts, and food from one cell to another cell. It occurs through a process that is called osmosis. Movement of particles from one part to the other. Sometimes they are also taken by the another process, that is the active transport. There the both the processes occurs either active transport or osmosis. Here we will study about the diffusion, osmosis, active transport, transpiration, and the role of xylem and phloem. Right now, here see diffusion, the movement of molecules from the region of their higher concentration to a region of the lower concentration to a fully permeable surface. When we ask fully permeable surface, means it occurs in the gases, liquids and solid. Gases, liquids and solids, the movement of particles from the lower concentration to the higher concentration to lower concentration. That is from the region of higher concentration to the region of lower concentration. For diffusion occurs through a cell membrane, it can be fully permeable to the molecule. In plants, exchange of gas between the atmosphere and the leaves. During respiration and photosynthesis, it occurs by diffusion and the loss of water vapor from the leaves. During transpiration, the loss of water vapor from leaves during transpiration, it also takes place by the diffusion. We can understand diffusion by the simple process here. If you take, जैसे हमने यहाँ पर हमने दिया diffusion से और ऑस्मोसिस से वाटर इनटेक, जैसे मान लीजिए हमने अपने ये डिफ्यूजन लिया, आधा फिल्ड विद द वाटर, आधा इसमें पानी भर दिया, नीचे हमने क्रिस्टल डाल दिए। 1 घंटे के बाद हम देखेंगे कि ये पानी जो क्रिस्टल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे और ये पूरा वाटर ब्लू होगा। तो कैसे हो गया? डिफ्यूजन से ये पूरा वाटर लिक्विड में डिफ्यूजन हुआ। अच्छा, ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय रूट हेयर्स, absorption of water from the soil by the root hairs occurs by osmosis when the movement of the molecules occurs through a semi-permeable membrane or selectively permeable membrane. It is called osmosis. Hence, osmosis can be a special kind of diffusion through a semi-permeable membrane. When it occurs, diffusion of molecules through the semi-permeable membrane from the region of the lower concentration to the higher concentration. During osmosis, water moves from the higher concentration to a region of lower concentration through a semi permeable membrane. Here as you see it here, देखिए ये हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, यहाँ पर हमने प्रोडक्ट्स लिया, इसमें शुगर ये मिनरल मॉलिक्यूल्स कम है, यहाँ मिनरल मॉलिक्यूल्स ज़्यादा है, लेकिन जो वाटर का कंसंट्रेशन है वो कम है। ये हमारे सेमी। अब इसमें देखिए अगर 1 घंटे बाद हम देखेंगे फ्रॉम द रूट हेयर वाटर मूव्स, ये यहाँ पर रूट हेयर जो है यहाँ से, दिस इज द हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, दिस इज, यहाँ देखिए कम है वाटर, यहाँ पर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इससे जो पानी है यहाँ पर आएगा, ये जब तक इसको एब्जॉर्ब कर नहीं कर लेता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा है, यहाँ पर मिनरल्स का कंसंट्रेशन, वाटर का कंसंट्रेशन कम है, यहाँ वाटर कंसंट्रेशन, तब क्या होगा, यहाँ का वाटर कंसंट्रेशन यहाँ तब तक जाएगा जब तक कि इन दोनों का कंसंट्रेशन बराबर नहीं हो जाता।
अब यहाँ पर देखिए कि वाटर मॉलिक्यूल्स का डिस्ट्रीब्यूशन बराबर है। अच्छा, इन्हीं मॉलिक्यूल्स के ऐसे ही रूट्स में हेयर जो रूट हेयर जो वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, इसके साथ ही साथ मिनरल्स जो होते हैं आयंस के फॉर्म में अलोंग विद द वाटर इसमें चले जाते हैं। जब इसका मूवमेंट होता है फ्रॉम द लोअर कंसंट्रेशन टू द हायर कंसंट्रेशन जब होता है, तब इसमें देखिए, जैसे ये देखिए, ये रूट हेयर है, ये रूट हेयर है, ये सेल वॉल है, ये सेल मेम्ब्रेन, ये तो फुली परमिएबल है। यहाँ पर वाटर, यहाँ पर मिनरल्स और वाटर ज्यादा है, यहाँ पर वाटर का कंसंट्रेशन कम है, तो क्या होगा, ये वाटर यहाँ से इस रूट हेयर के थ्रू इसके सेल हेयर के अंदर आ जाएगा और यहाँ से फिर ये आपके प्लांट्स के अंदर जाएगा। देखिए यहाँ से ये इससे एब्जॉर्ब हुआ सॉइल पार्टिकल्स, इसके बीच में जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये वाटर मॉलिक्यूल्स रूट हेयर में एब्जॉर्ब होकर के, और फिर ये देखिए उसके सब्सिक्वेंट सेल्स से जा करके ये यहाँ पर रूट और स्टेम के जरिए ऊपर जाता है। अब इसमें देखिए, आपने यहाँ आपका डायग्रामेटिक कंसंट्रेशन था कि हाउ द वाटर मूव्स अप हियर। अब ये वही चीज इसमें देखिए, वाटर, ये देखिए रूट हेयर है, सेल्स हैं, सॉइल वाटर है, ये इसमें एब्जॉर्ब हुआ, इसके आपके एपिब्लेमा कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स जाइलम, फिर इस जाइलम सेल से पानी ऊपर चलता है। जब जाइलम सेल्स में आते हैं तो इस जाइलम सेल से जो है पानी, यहाँ पे जाइलम सेल, जैसे ये रूट हेयर्स है, यहाँ से एब्जॉर्ब हुआ, अब यहाँ पे जाइलम, तो इस जाइलम सेल से आपके रूट प्रेशर के थ्रू प्रेशर होकर के आपका सेल से आप स्टेम में जाएगा, स्टेम से ये ब्रांचेस में जाता हुआ फिर लीव्स में जाके ट्रांसपिरेशन के थ्रू वाटर, एक्सेस नहीं, वाटर एवापोरेट होता है। अगर यहाँ से पानी नहीं मिलेगा रेगुलर, तो आप देखिए अगर आप पेड़ को पानी ना दे तो पेड़ सूख जाएगा, ट्रांसपिरेशन को हम चेक नहीं कर सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से देखिए ट्रांसमिशन जो वाटर, वही देखिए इसमें भी एक्सप्लेन किया है। ये हमने इसका पोटैटो, ये पोटैटो को ऑस्मोस्कोप बनाया, इसमें हमने कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन डाला और बाहर वाटर डाल के रखा। 1 घंटे बाद देखें कि इसका जो कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन का लेवल जो हमने यहाँ लगाई थी, ये ऊपर तक आ गया। क्यों? क्योंकि ये जो ऑस्मोस्कोप है, ये सेमी परमिएबल की तरह काम किया इसने, और बाहर से वाटर जो एब्जॉर्ब होके अंदर आ गया। इसी तरह से रूट हेयर जो है वाटर इसको एब्जॉर्ब करते हैं। अब जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि रूट हेयर्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल बाय ऑस्मोसिस से concentration of water higher in the soil than in the root hair, so along with the water root hair also absorbs mineral। जो इसमें से जैसे जो एनर्जी है, तो इसके लिए जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, क्योंकि जब ये रूट हेयर जो इसमें पानी एब्जॉर्ब करते हैं तो इसके साथ साथ एनर्जी लगती है। भाई कोई भी काम करेंगे, नीचे से ऊपर खींचेंगे तो एनर्जी तो लगेगी ना उसको ऊपर लाने। हम स्टेप्स चढ़ते हैं तो हमको एनर्जी यूज करनी पड़ती, तो इसलिए रूट है ऑल्सो एब्जॉर्ब मिनरल्स अलोंग द सॉइल, वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर ही के साथ साथ लो कंसंट्रेशन से जो हाई कंसंट्रेशन में जाता है, यूजिंग एनर्जी द मॉलिक्यूल्स जे एब्जॉर्ब, but along with the water root hairs also absorb minerals. So minerals cannot be absorbed by osmosis, their concentration is more in the root hairs than in the, तो उसमें क्या, they absorb by another process, active transport। तो मिनरल्स जो एब्जॉर्ब होते हैं वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट्स होते हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, मॉलिक्यूल्स एब्जॉर्ब बाय द सेल अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट बाय यूजिंग एनर्जी, कैरियर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द सेल मेम्ब्रेन। Active transmitter move from their lower concentration to higher concentration through the cell membrane. But in this process, some proteins in the cell membrane act as carrier molecules and transport the substance from outside to inside the cell. इसका मतलब ये है कि जैसे ही ट्रांसफर फर्दर हम ट्रांसपोर्टेशन करते हैं, ये देखिए वाटर मूव्स थ्रू द जाइलम स्टेम इनटू द लीफ थ्रू ए पोल, ट्रांसपायरेशन पोल। अब जब वाटर and minerals they are absorbed by the roots conducted upwards through the xylem to the other parts such as stem, leaves, flowers। ये stem, leaves, flowers सब में होते हैं। So upward movement of cell sap means water along with minerals, उसको हम cell sap कहते हैं। means water along with the minerals, upward movement of the cell sap that contains water and minerals is called ascent of sap। ये ascent of sap means water and minerals, what we think is going on there, xylem it conducts water above।
इसको हम देखेंगे कि अगर हम इसको वर्सेस कंट्री, इसको हम सिंपल देखिए, एक यहाँ पर थ्योरी है, जैसे कटिंग स्टेम ऑफ द हर्बेसियस प्लांट से इसका स्टेम काट देंगे। अगर हमने इसको स्टेम काट दे तो अब आप देखिए, आप इसका कट स्टेम, तब इसके एंड्स में आप यहाँ पे इसकी जड़ें हैं, ये जड़ें जो है वाटर कंडक्ट ऑब्जॉर्व करेंगी। तब आप यहाँ पर देखेंगे द रूट प्रेशर इज डेवलप्ड इन द रूट्स, कंटिन्यूस इनवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, इनवर्ड यानी कि अंदर की तरफ वाटर होएगा। If the stem is cut, the xylem sap exudes water from the cut end. यहाँ से वो water निकलेगा, and this pushing of the xylem sap due to the root pressure. Under root pressure develop होता है, उसी से जो है ये water ऊपर जाता है। Root pressure continuously forces water up. Root pressure लगातार पानी को ऊपर फेंकता है, तो इसी से क्या force that helps upward movement of water through the stem. जैसे यहाँ से गया वाटर, जो ट्रांसफर यहाँ से रूट से एब्जॉर्ब हुआ, एब्जॉर्ब से स्टेम, तो जैसे ही रूट प्रेशर से एब्जॉर्ब होगा स्टेम, स्टेम से गया ब्रांचेस में, ब्रांचेस से आपके ये ब्रांचेस में, ट्विग में गया स्टेम, और लीव से ट्रांसफर। तो जैसे ही वाटर यहाँ से ट्रांसफर हुआ, तो जो उसके एडजेसेंट से लीव्स के होते हैं वो उससे पानी खींचेंगे ऊपर। जब ये पानी खींचेंगे तो प्रेशर डेवलप होगा, तो रूट से वाटर और ज़्यादा एब्जॉर्ब होगा। भाई ऊपर जब पानी एवॉल्व होगा तो ऊपर प्रेशर ज़्यादा आया, तो जब प्रेशर लगेगा तो उस प्रेशर से और ऊपर, जैसे ट्रांसपरेशन is what? Evaporation of water vapor in the form of water vapors through the stomata. So plants absorb large amount of water from the soil. Only 2% water is used in the plant. खाली 2% होता है, और 98-99% वाटर इज लॉस्ट थ्रू ट्रांसपायरेशन। मतलब 1 से 2% जो होता है वाटर, ये वाटर जो है इसमें स्टोर करके इसके एक्टिविटीज में एक्टिव रहता है, और 98-99% वाटर जो होता है वो ट्रांसपायरेशन यानी स्टोमेटा से एवोपोरेट हो जाता है, भूल जाता है। तो जब ट्रांसपिरेशन यहाँ से वाटर ट्रांसपायर हुआ, तो उससे एक फोर्स क्रिएट होता है जिसे हम कहते हैं ट्रांसपायरेशन पुल या सक्शन फोर्स होता है। तो इससे क्या होता है, पानी जब ये स्टेम लीव्स में आया, लीव्स से बाहर गया, तो ये होगा अपने स्टेम से जो वाटर है ये उसको लेगा, तो इसमें पानी कम हो जाएगा। तो ये पानी क्या करेगा, अपने नीचे वाले सेल से एब्जॉर्ब करेगा, नीचे वाले सेल से। तो ऐसे ही कंट्रीज एब्जॉर्ब, तो यहाँ कम होगा तो ये रूट हेयर्स क्या करेंगे, ये नीचे सॉइल से पानी एब्जॉर्ब करेंगे। इट कंपेयर सक्शन पुल क्रिएट, जैसे अपटेक वाटर by transpiration of water from the leaves has in the upward movement of water. So more transpiration means more uptake of water by the plant, means more mineral nutrients also by the plant. As the water moves up, dissolved minerals also move along with the water. और चूंकि कंटिन्यूस पानी एवोपरेट होता है, तो जनरली टोटल एवोपरेट होने से क्या होगा, ये जो पेड़ जो होते हैं, पत्तियां अगर आप छुएं तो ये हमेशा ठंडी रहती है। ये गर्म, कभी गर्मियों में भी आप छुएं पत्तियां हमेशा ठंडी, ठंडी क्यों रहती है, क्योंकि पानी एवोपरेट होता जाता है। घड़े में भी पानी ठंडा क्यों होता है, क्योंकि घड़े से भी पानी का एवोपरेशन होता है। तो जितने काली मिट्टी के घड़े होते हैं, तो काली मिट्टी के घड़े महाराष्ट्र साइड अगर आप जाएंगे देखेंगे, वहां पर ब्लैक सॉइल के होते हैं पॉट्स, अर्थन पॉट। तो ब्लैक सॉइल में क्या ज्यादा पानी है, तो ज्यादा पानी निकलता है, तो बिल्कुल फ्रिज की तरह ठंडा पानी होता है उसमें। सो एवोपरेशन मीन्स कूलिंग अफेयर, एवोपरेशन वाटर ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन cools the surface of the leaf, and this protect the plant from a strong sunlight and high temperature। जो सनलाइट और हाई टेम्परेचर है उससे इसको जो है ये प्रोटेक्ट करता है। अब यहाँ देखिए, टू स्टडी वाटर वेपर इज रिलीज ड्यूरिंग ट्रांसपायरेशन। आपने ये प्लांट लिया, इसको आप पॉलिथीन से कवर कर दिए, बाहर रख दीजिए, कुछ देर बाद आप देखेंगे कि इसमें आपको पानी की बूंदें दिखाई, दिस वाटर वेपर्स यू आर एबल टू। सो व्हाई दिस शोज दैट लीव्स ट्रांसपायर वाटर। ये दिखाता है कि लीव से पानी, इसको हम पूरा कवर, पॉट को कवर नहीं करेंगे, हम सिर्फ प्लांट को कवर करेंगे। ये देखिए, यहाँ से सिर्फ प्लांट को, सॉइल को नहीं गए, तो इससे तो सॉइल से भी एवापोरेट होकर पानी आ सकता है। तो इसलिए हम सिर्फ प्लांट के स्टेम से इसको हम पॉलीथीन से कवर करेंगे। ये पॉलीथीन बैग से कवर किया, यहाँ पर वाटर वेपर, कुछ देर बाद। तो इससे क्या प्रूव होता है कि लीव से वाटर ट्रांसपायर होता है। कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट करते हैं ट्रांसपायरेशन को, सनलाइट, सनलाइट इज हाई, ट्रांसपायरेशन विल बी मोर, sunlight is low, dark stomata they remain closed, transpiration is less, temperature, high temperature more transpiration, low temperature less transpiration, high humidity more water vapor in the air, less transpiration, low humidity low humidity high transpiration, humid day, जब ह्यूमिडिटी ज़्यादा होती है तो ट्रांसपायरेशन कम होता है, ह्यूमिडिटी कम होगी ट्रांसपायरेशन ज़्यादा होगा। विंड ट्रांसपायरेशन, व्हेन द विंड इज ब्लोइंग फास्टर द वाटर ट्रांसपायर
transpired water will be more. If wind is blowing slow, then the transpiration will be less. जैसे डिफ्यूजन क्या है, मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स थ्रू द movement of molecules from the low, the movement of molecules from high to low concentration, that is the diffusion. Osmosis, movement of molecules through semi permeable membrane. Active transport क्या होता है, transpiration क्या होगा, movement of pressure by cut end of the stem execute center, that is the root pressure. Transpiration, evaporation of water from the surface of the leaves. Active transport means movement of molecules from low to higher concentration. देखा ये इसमें क्या है. अब ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड फूड कैसे होता है. प्लांट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल विद द हेल्प ऑफ द रूट्स. फ्रॉम द रूट्स दे ट्रांसपोर्ट are transported to leaves where they are used to synthesize food. Synthesize food. So leaves they prepare food by using carbon dioxide, water in the presence of sunlight by the process of photosynthesis. ये आपने रेसिपी है. Food prepared by leaves is transported to all parts of the, and the transport system in the plant, it is made up of two tissues, xylem and phloem. Xylem transport water and minerals from the roots to the another parts of the, phloem transport food made by leaves from the leaves to the other parts of the plant. Xylem transports water and minerals from the roots upward towards the leaves. Phloem distributes food prepared by leaves to different parts of the plant. Food ऊपर से नीचे आता है, xylem और water से, पानी ऊपर होता है. Water and minerals they are going up. Food by up, ये xylem से और phloem से food is moving down. Transport of water and minerals. Plant absorb water and minerals from the soil with the help of the root hair. Root hair increase the surface area of the root for absorption and direct contact with the water present in between the soil particle. Water along with the minerals is absorbed by the root hairs that move from xylem to the roots, root to the stem, branches, leaves. From then, food from up moves up by interconnected xylem vessels in the stem and reaches the leaves. Food transport, leaves prepared by photosynthesis, prepared by the leaves, transported to the various parts of plant by phloem cell. Phloem transport food to all directions of the plant. Xylem and phloem, they are the conducting tissues in the plant. Xylem and phloem together, conducting tissue plant, they are present in the stem, roots and leaves. जो आपको रिप्स वगैरह दिखाई देती है ना लीव्स में, जो मिड रिप्स, दे आर द कंडक्टिंग स्टैंड मेड अप ऑफ xylem and phloem. Xylem and phloem both are complex tissues. They are made up of more than one type of the cell. Xylem vessels, xylem fibers, tracheids, xylem parenchyma. Of these, xylem parenchyma are the living cells, rest are xylem parenchyma is the living cells, rest are dead cells. इसमें सिर्फ ये xylem चार तरह के होते हैं, xylem vessels, tracheids, xylem fibers, xylem parenchyma. इसमें xylem parenchyma सिर्फ living tissues है, fibers, vessels, tracheids ये सारे dead cells हैं. As you see the water moving up, the other xylem vessels are there. Vessels, series of long tube like dead cells ज्वाइन एंड टू एंड. जो वेसल्स ये होते हैं सीरीज एंड लाइक वन एंड टू एंड जो जाइलम वेसल्स होते हैं. ट्रैकिड्स आर लॉन्ग नैरो डेड सेल टेपरिंग एट द एंड. टेपरिंग एट द एंड मतलब जो पतले पतले दिखाई देते हैं, जो टेपरिंग सेल्स होते हैं एंड में ट्रांसक्रिप्शन में होते हैं. Xylem fibers, they are thin fiber dead cells. Xylem thick walled cells was xylem parenchyma only living cells associated with the xylem. Xylem present all parts of the plant, root, stem and the leaves. Main function conduction of water and minerals from the roots upward to the leaves. Phloem, it is composed of four types of cells: sieve tubes, companion cells, phloem parenchyma, phloem fiber. ये देखिए आपका फ्लोरम पेरिकाइमा, ये सीव ट्यूब्स हैं, ये कंपेनियन सेल्स हैं, ये सी प्लेट, ये छन्नी की तरह होते हैं, छन करके ये फूल नीचे ट्रांसपोर्ट होता है. एक्सेप्ट फ्लोएम फाइबर्स, रेस्ट अदर फ्लोएम फाइबर्स जो होते हैं, ये सेल्स जो होते हैं, ये जो हैं ये लिविंग सेल्स हैं, बाकी सारे डेड सेल्स. सीव ट्यूब्स, दे आर एलोंगेटेड लिविंग सेल्स, पोरस एंड प्लेट्स. ये देखिए ये पोरस हैं, ये प्लेट्स हैं, जिससे कि ये बाहर प्लेट्स हैं, अगर इसको आप सेक्शन काटिए तो आपको ऐसे दिखाई देगा. इसमें छनी, इसी से फूड ट्रांसपोर्ट होता है, ये ट्रांसपोर्ट होता है. और कंपेनियन सेल्स, दे आर थिन एलोंगेटेड लिविंग सेल्स, दे आर एसोसिएटेड विद द सीव ट्यूब. Phloem parenchyma, they are small living cells associated with the same. Phloem fibers are thick walled fiber like dead cells that give strength to the plant.
They are present in all parts of the plant stem loops and in main function transport of food prepared by leaves to the different parts of the plant. हाउ कैन यू डिमॉन्स्ट्रेट दैट द वाटर थ्रू द जाइलम सेल्स? आप इस प्लांट में देखिए, अगर यू टेक ए ट्रिग ऑफ प्लांट डिप्ड इन द वाटर, इसको आप रेड सोल्यूशन से कर दीजिए। जब रेड सोल्यूशन फ्लावर इन द डे आप कर देंगे, जब इसको रेड सोल्यूशन से आप करेंगे तब आप देखेंगे कुछ देर के बाद इसमें इसकी जो लाइनिंग्स होती हैं फूल्स की, आप विंकर रोजिया प्लांट सदाबहार के प्लांट में आप घर में करके देख सकते हैं, तो उसकी जो लाइनिंग्स होती हैं, पत्तियों की लाइनिंग जो होती है वो लाइट कलर होती है, और जब रेड कलर से करेंगे डालेंगे तो उसमें देखेंगे वो रेड कलर के। दिस शोज दैट वाटर इज evolved थ्रू द xylem cells ऑफ ए प्लांट। अब डिफरेंसेस क्या होते हैं? xylem दे ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स, दे ट्रांसपोर्ट फूड प्रिपेयर्ड बाय द लीफ, दे ट्रांसपोर्ट वाटर अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट, दे ट्रांसपोर्ट इन वेरियस डायरेक्शन to the different parts of the plant. I hope this is clear to you. Now we come to the next one, macro and micronutrients of plant. Plants, they require number of nutrients for their healthy growth and development. होते हैं nutrients चाहिए होते हैं, directly they absorb by the roots and they are essential for their normal growth and reproduction. Reproduction means formation of the flower, fruits and the seeds. If plant does not get the essential nutrients in the right amount, then there are the certain deficiency symptoms occurs in the plant. तो उसमें deficiency systems आ जाते हैं plants में. They may be, तो जो nutrients उसमें होते हैं वो दो तरह के, macronutrients, micro. मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए, कम क्वांटिटी में चाहिए, उनको हम माइक्रोन्यूट्रिएंट। ज़्यादा क्वांटिटी में जो चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम, इसमें हम इसे कम से कम 10 मिलीग्राम्स पर ग्राम वेट होता है। अगर प्लांट का वेट 1 ग्राम के में 10 मिलीग्राम चाहिए होता है, और जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं वो 0.1 मिलीग्राम पर ग्राम ऑफ द वेट उनको चाहिए, जैसे आयरन है, मैंगनीज है, जिंक है, ये माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं। मैक्रोन्यूट्रिएंट जो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये तो नाइट्रोजन द मेजर कंपोनेंट इट, जिसमें न्यूक्लिक एसिड, विटामिन्स और एंजाइम नीडेड बाय ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स इन द लार्ज अमाउंट। अगर इसमें कमी होती है तो क्या होता है? लीव्स येलो हो जाती हैं, स्टंटेड ग्रोथ होती है, ग्रोथ कम होती है, रिंकलिंग, ग्रेन जो रिंकल्ड होते हैं, फ्लावरिंग डिलेड होती है। फास्फोरस इट नीडेड फॉर द न्यूक्लिक एसिड्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स, सेल मेम्ब्रेन और प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए जो इसमें पर्पल या रेड स्पॉट्स आते हैं, प्री मैच्योर लीफ फॉल फ्लावर बर्ड्स में होता है। पोटेशियम जो होता है, opening and closing of the stomata activate the many enzymes, is yellowing of the stunted growth, plant does not gain weight, बढ़ता नहीं है जल्दी, छोटा रहता है, जल्दी रहते हैं, सूख जाते हैं प्लांट्स, ये सब चीज़ें इसमें होती हैं। जो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स होते हैं दूसरे होते हैं, जैसे आयरन है, आयरन की कमी से क्या होता है? येलोइंग लीव्स, स्पेशली द यंग लीव्स, इंपॉर्टेंट कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन, एसेंशियल फॉर सिंथेसिस ऑफ क्लोरोफिल, आयरन होता है। मैंगनीज, मैनी एंजाइम्स, फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के लिए मैंगनीज के एंजाइम्स होती है, इसमें भी येलोइंग ऑफ द लीव्स, ग्रे स्पॉट्स आते हैं। जिंक, जिंक में क्या होता है? मेल फॉर्म, मतलब ग्रोथ अच्छी तरह नहीं होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, इसमें बहुत से एंजाइम्स एक्टिवेशन में जिंक की जरूरत होती है, एंड सिंथेसिस ऑफ ग्रोथ हार्मोन्स जो होते हैं उसके लिए इसकी ज़रूरत पड़ती है। अब इसके डेफिशिएंसी से डिजीजेस भी हो सकती हैं, जैसे डिजीजेस डेफिशिएंसी, जैसे क्लोरोसिस है, नेक्रोसिस है, डिलेड फ्लावरिंग है, डाइबैक ऑफ शूट है, डेफिशिएंसी में कॉज इन द मल्टीपल सिस्टम, जैसे सिम्टम्स, मैनी सिस्टम्स। क्लोरोसिस, क्लोरोसिस में क्या होता है? लॉस ऑफ क्लोरोफिल, मतलब येलोइंग ऑफ द लीव्स होती है। नेक्रोसिस इट लोकलाइज डेथ ऑफ द टिश्यूज लाइक इन बर्ड, मतलब पर्टिकुलर पार्ट में जो टिश्यूज डेड हो जाते हैं, जैसे लीफ टिप्स में है, लीफ मार्जिन्स में स्कैटर्ड स्पॉट्स फॉर्म होते हैं, नेक्रोसिस होते हैं। फ्लावरिंग डिलेड हो जाती है प्लांट्स में, फ्लावर डिलेड नहीं होते हैं, डायल्यूट्स इट्स लेट्स टू द डेथ। सो हियर जस्ट take a base diffusion, osmosis, active transport. I mean, there's the main how the molecules move to transport food and water. Just take a quick picture and go through it. Next, conducting tissues in the plants, xylem and phloem. What are their functions? Plants, what are macronutrients? What are micronutrients? I hope everything's clear. Any doubt anywhere, you can ask me in the comment section. If you like the video, don't forget to subscribe to my channel. Again, we will meet in the next video. Thank you.